So in the previous class, we learned a lot of things regarding human body. And in the previous class, we learned about internal organs, external organs, and also the functions of some internal organs, why they are called vital organs, right? So today in this session, we are going to discuss about plants. Plants यानी पौधों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे. Okay, children. So you know that plants are of very importance, right? जो plants है हमारे लिए बहुत जरूरी है. And the plants, we know that there are so many important features of plants, है ना? So let's talk about the importance of plants first. Importance of plants. Okay. So you might have studied in the earlier classes that how the plants are very essential for our life, isn't it? Plants are known as the producers on the earth. Why they are called the producers? Because they provide us food. They are the producers of food. Okay? They provide us food. Then the plants give us oxygen that we breathe in. So in the previous class, we learned that how breathing occurs, how the lungs helps us in breathing. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. So the oxygen we get from the plants, oxygen from plants. Okay. Then the plants, they absorb the harmful gases. They absorb the harmful gases and they helps in purifying our environment. So they purify our environment. Okay. So these are the most important things or the importance of plants. They provide us food. We get oxygen from plants. They absorb the harmful gases and purify our environment and many more things. Then children, you must have learned that which are the parts of a plant. Like in human body, we have many parts, many organs. In the same way, plants also have body parts. So let's have a short glimpse on the parts of a plant. Okay. Now, can you see a plant here? Which are the parts of this plant? Here you can see the roots, okay? Then the stem, leaves, then the flower is here, and some plants have fruits, okay? Now let's see one by one the parts of the plant and their functions. At first, let's talk about the roots. हम रूट के बारे में पहले देखेंगे. रूट्स क्या है, यानी कि जिन्हें हम जड़ें कहते हैं या मूल कहते हैं, जड़ या मूल कहते हैं. ये रूट्स किस लिए होते हैं? रूट्स के फंक्शन क्या है? बेटा क्या होता है रूट का फंक्शन, क्या करता है रूट? द रूट्स क्या करते हैं ये? दे एब्जॉर्ब water and minerals from the soil they absorb water and minerals from the soil and transfer it to plant body. Okay. And what is the next function of root? The roots hold the plant firmly to the soil. The roots hold the plant firmly to the soil.
firmly to the soil। यानी कि एक फंक्शन तो ये है कि वे क्या करते हैं, भूमि के नीचे से। रूट्स हमेशा कैसे होते हैं, जियोट्रॉपिक होते हैं, है ना। हमेशा कहाँ को ग्रो करते हैं, भूमि की तरफ ग्रो करते हैं, धरती की तरफ ग्रो करते हैं, है ना। ऊपर को नहीं, नीचे को ग्रो करते हैं, तो उन्हें हम जियोट्रॉपिक कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि भूमि के अंदर की जो पानी होती है उसको, और जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ के आवश्यक, यानी कि प्लांट्स के जो ग्रोथ में जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर होते हैं, उसको क्या करते हैं ये रूट्स, ये एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स को देते हैं। और दूसरा फंक्शन ये होता है उनका कि वे प्लांट्स को जो है क्या करते हैं, मिट्टी में अच्छे से पकड़ के रखते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर की तरफ को पकड़ के रखते हैं, ताकि जो पेड़ हो या पौधा हो वो आसानी से ना गिरे। ठीक है। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है स्टेम। नाउ टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। पेड़ का तना, पौधे का तना, है ना, स्टेम। स्टेम का क्या काम क्या है, स्टेम क्या करता है, स्टेम जो है पौधे को सपोर्ट करता है, यानी कि उसका जो भार होता है ना, पेड़ का जो भार है, या जो उसके जो क्या बोलते हैं पत्तों के, फलों के, इन सब के भार को कौन सपोर्ट करता है, स्टेम सपोर्ट करता है। और क्या करता है, एक और काम करता है स्टेम, जो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करता है, द वाटर एंड द मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स आर कंडक्टेड बाय, यानी कि ये जो इसका काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द एंटायर प्लांट बॉडी। यानी कि जो रूट्स जो होती है ना, जो रूट्स पानी को खींचती है और जो मिनरल्स को खींचते हैं, उसको आगे ले जाने का कार्य कौन करता है, उसको आगे ले जाने का कार्य स्टेम करता है। ठीक है। अब कई जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। तो जो फ्लावर होता है वो एक पौधे का, प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, है ना, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ठीक है। और इसी को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर को हम, ये मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है, कलरफुल होता है, जो क्या करते हैं, बीज को, हनी बीज को, सबको, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और हम भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं। इनके फ्रैग्रेंस अच्छी होती है ना। रोज फ्लावर जरा सोचो तुम, कितनी अच्छी सुगंध देती है, तो हम भी क्या होते हैं, इनकी सुंदरता की तरफ या इनकी खुशबू की तरफ आकर्षित होते हैं। और ये जो है फ्लावर जो होते हैं प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। So the flowers are the reproductive part of a plant। ठीक है। तो फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यही फ्लावर बाद में क्या बन जाता है, ये मॉडिफाइड होकर फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। अब फ्रूट का काम क्या है, फ्रूट बेयर्स सीड्स। ठीक है, सीड्स, फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, आपने देखा होगा, फ्रूट्स जब भी आप काटते हो उसके अंदर सीड्स होते हैं, है ना। तो फ्रूट बेयर क्या, सीड्स, सीड्स होते हैं उसमें। और यही सीड्स क्या करते हैं, डिस्पर्सल का, ये फ्रूट जो है सीड डिस्पर्सल का काम करते हैं, सीड डिस्पर्सल का कार्य करते हैं, जिससे आगे चलकर ये सीड्स क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और नया प्लांट बनता है, न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है। ये बात क्लियर है। फ्लावर से फ्रूट बनता है,
फ्लावर जो है मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है एंड इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट and the flower then again modifies into the fruit and the fruit bears seeds and the fruit helps in the seed dispersal and the seeds germinate into a new plant. तो इस प्रकार से नए नए प्लांट्स की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब मैं जो बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा पार्ट है? आपको पता है जब प्लांट की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी लीव्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? उसकी लीव्स की, यानी कि पत्तों की बात करेंगे। तो अगर हम लीव्स की बात करें, लीव्स को हम प्लांट्स का किचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट्स का किचन बोलते हैं। किचन क्यों बोला जाता है लीव्स को? वो आपको पता होगा। हमारे घर में किचन का पर्पस क्या है? किचन में हम लोग क्या करते हैं? फूड कुक करते हैं ना, खाना पकाते हैं। तो इसी प्रकार लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हम ऐसे बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज लीव्स कैन प्रिपेयर फूड। लीव्स क्या करते हैं? खाना प्रिपेयर करते हैं। हमारे जैसे नूडल्स या सैंडविचेस नहीं बनाते वो बहुत ही पौष्टिक तरीके से ग्लूकोज के रूप में जो है खाना पकाते हैं। सो द प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं प्लांट्स को? प्लांट्स और द ट्रीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इस अर्थ के प्रोड्यूसर्स कौन माने जाते हैं? प्लांट्स माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? बिकॉज दे कैन प्रिपेयर फूड फॉर द एंटायर वर्ल्ड। यानी कि जो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हम सबके लिए किसी ना किसी रूप में ये जो क्या बोलते हैं प्लांट्स हैं, हमारे लिए भोजन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, किसी न किसी रूप में। एंड वी ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, वी आर नोन एज कंज्यूमर्स। हम किस नाम से जाने जाते हैं? हम कंज्यूमर्स हैं। वी कांट प्रिपेयर आवर फूड इन आवर बॉडी। हम अपने बॉडी में हमारा खाना स्वयं नहीं बना सकते, हम बाहर से खाना लेते हैं, है ना। वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर आवर फूड। हमारे खाने के लिए हम प्लांट्स पे डिपेंडेड होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। So the plants are known as the producers and we human beings and animals are known as the consumers. हमें consumers कहा जाता है और plants को producers कहा जाता है। अब बेटा ये जो plants है ना, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? How they prepare their food? Is there any process? ऐसे एक प्रोसेस के बारे में आपने सुना होगा कि जिसके कारण या जिसकी वजह से वे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं उसको? फोटोसिंथेसिस। सी, द फोटोसिंथेसिस टर्म is a combination of two terms. ये इसके दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है ये फोटोसिंथेसिस। क्या है ये देखो, एक तो फोटो और एक सिंथेसिस। ठीक है, इन दोनों टर्म से बना हुआ है ये फोटो और सिंथेसिस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फोटो? फोटो यानी, फोटो का मतलब क्या है? फोटो यानी लाइट, लाइट, और सिंथेसिस यानी प्रोडक्शन। ठीक है, बनाना। तो आपको पता लग रहा होगा कि लाइट की सहायता यहाँ पर चाहिए क्या बनाने के लिए? कुछ बनाना है यहाँ पर, और जो प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ये वो क्या बोलते हैं प्रोसेस है by which the plants prepare their own food. Okay, this is the process by which the plants prepare their own food. ठीक है, and this is known as the photosynthesis
प्रोसेस। अब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या होता है देखते हैं। अब यू नो दैट द सनलाइट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। हमारे जो विश्व में हमारी जो भूमि है उसका मेजर सोर्स है, जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, वो सनलाइट है। और इसी सनलाइट की वजह से हम सभी जीवित हैं, ठीक है। अब द प्लांट्स, स्पेशली द ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब्स, क्या करते हैं वे, कि एब्जॉर्ब करते हैं, किस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, सन्स एनर्जी। सन की जो शक्ति है, सन की जो एनर्जी है, सन के जो रेस है, उसको क्या करते हैं, उसको खींचते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं वो, ठीक है। सन्स एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, पता है ना। हम जो एक्सेल करते हैं, इनहेल हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को करते हैं, बाहर क्या छोड़ते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए, वाटर, एंड दे प्रिपेयर ग्लूकोज एज फूड, ठीक है। खाना किसके रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में अपने बॉडी में स्टोर करते हैं। अब इसमें एक और फैक्टर चाहिए, ये जो फोटोसिंथेसिस होने के लिए यहाँ पर एक और एसेंशियल फैक्टर चाहिए, वो क्या है, वो कौन सा फैक्टर है, कोई बता सकता है मुझे। एक और एसेंशियल फैक्टर है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, और वो है क्लोरोफिल। हैव यू एवर हर्ड द टर्म क्लोरोफिल, सुना है आपने क्लोरोफिल का नाम। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, इन द ग्रीन लीव्स देयर आर सम पिगमेंट्स विच आर ग्रीन इन कलर विच हेल्प्स इन द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। क्या करते हैं ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना बेटा, ये जो प्लांट्स के सेल्स के अंदर, जो स्पेशली ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर इस प्रकार के ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, और एंड दीज ग्रीन पिगमेंट्स आर नॉन एज क्लोरोफिल, एंड दे हेल्प्स इन ट्रैपिंग द सन्स एनर्जी। क्या करते हैं ये, सन के एनर्जी को ये ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं, ये सन के एनर्जी को ट्रैप करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो फोटोसिंथेसिस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है, देख रहे हो सभी, ये देखो यहाँ पर देख सकते हो, द ग्रीन प्लांट्स दे एब्सॉर्ब sun's heat energy, the solar energy from the sun, okay, in the presence of carbon dioxide gas plus water, ठीक है। वाटर होता है, यहाँ से जो रूट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, और क्या करते हैं ये, क्लोरोफिल की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स, ठीक है, क्लोरोफिल, दे कन्वर्ट द एनर्जी इनटू, किस में कन्वर्ट करते हैं, शुगर या ग्लूकोज के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाता है, एंड दे एक्सपेल आउट, क्या करते हैं, उसको बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। किसको बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। दे गिव्स आउट ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ इन, ठीक है। हमारे छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या करते हैं, हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन जो है किसमें, एटमॉस्फेयर में वे रिलीज करते हैं। इज इट क्लियर, क्लियर है ये सबको, ठीक है। तो ये यही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस को
अच्छे से लिखे, अगर इसकी डेफिनेशन को अच्छे से लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? The green plants absorb sun's energy in the presence of carbon dioxide, water, and chlorophyll, which is the green pigment, and they convert it into glucose and releases oxygen into the atmosphere. They releases oxygen into the atmosphere. So children, can you tell me what is the difference between photosynthesis and respiration? देखो, respiration और photosynthesis में क्या difference है? कुछ पता लगा आपको? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में अगर एक ही बात हम लोग करें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा और क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और CO2 को बाहर छोड़ा जाता है। CO2 is expelled out. Clear? So that is the process called photosynthesis. Okay. Now, कभी हमने सोचा है कि ये जो गैसेस जो होते हैं ना, अंदर बाहर लेते हैं जो पौधे, वो कैसे लेते हैं? How they exchange the gases, how the plants exchange the gases को वे कैसे exchange करते हैं? Plants कैसे करते हैं? With the help of small tiny apertures called stomata. सुना है आपने stomata? ठीक है, स्टोमेटा नाम सुना है आपने? ये जो स्टोमेटा होते हैं ये टाइनी ओपनिंग्स होते हैं। ठीक है, ये लीव्स है, जैसे कि ये लीफ है, इस लीफ के निचले हिस्से में लोअर साइड में छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे टाइनी क्या होते हैं? टाइनी एपर्चर्स होते हैं या टाइनी होल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो आप देखना चाहेंगे स्टोमेटा हम कैसे देख सकते हैं? वी कैन सी द स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, फॉर दैट let us perform an experiment and I'll show you how you can see the stomata with the help of microscope. माइक्रोस्कोप की सहायता से हम क्या करने वाले हैं? स्टोमेटा को देखने वाले हैं। तो आ जाइए हमारे लैब में। ओके, तो हम देखते हैं अभी। ठीक है, स्टार्ट करें? देख रहे हो सभी? यस। अब ये देखो क्या करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक लीफ को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमें एक लीफ चाहिए। ओके, लेट अस सेलेक्ट मैंगो लीफ। देन उसको हम क्या करेंगे? वी टेयर इट इनटू पीसेस, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे। एंड देन कैन यू सी अ फॉर्सेप हियर? इस फॉर्सेप को लेंगे और इसमें से एक छोटे से टुकड़े को हम लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू माउंट इट ऑन द ग्लास स्लाइड। एक ग्लास स्लाइड के ऊपर हम इसको क्या करेंगे? इसको माउंट करेंगे। ओके, एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, यानी कि सूख जाएगा ये जल्दी से, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे? थोड़े से पानी के बूंदे इसके ऊपर डालेंगे। डाल दिया? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द कवर स्लिप। कवर स्लिप देख रहे हो, ग्लास का एक कवर स्लिप यहाँ पर रखा हुआ है। इसको क्या करेंगे? इसको हम इसके ऊपर जो हमारा पील है, जो मैंगो लीफ का पील है, उसके ऊपर हम लोग प्लेस करेंगे। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? वी आर गोइंग टू सी द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। ओके, तो हमने स्लाइड उठाया, सीधे हम लोग लेकर गए कहाँ पर? माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोगों ने लेकर गए हम लोग उसको। अब हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप के लेंसेस को एडजस्ट करते हुए हम क्या, अभी हमें दिखेगा नहीं, ठीक है, ओके, फाइन एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। इसका क्या करेंगे? इसको माइक्रोस्कोप देखा है सबने, आप सबने स्कूल में देखा होगा, अपने लैब में देखा होगा।
तो हम लोग इसका फाइन एडजस्टमेंट करेंगे। नाउ यू कैन सी क्लियरली, क्या देख सकते हो आप यहाँ पर? कैन यू सी टाइनी अपर्चर, स्मॉल स्मॉल टाइनी होल्स हियर? ठीक है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे देख रहे हो आप, यहाँ पर देखो होल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो इनको हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड द स्टोमेटा। ठीक है, और भी अच्छी तरह से अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे तो थोड़े से हाई पावर में इसको देखेंगे। यस, उसको एक और बार हम फाइन एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। देख रहे हो आप लोग? देखा आपने? ये देखो, ये स्टोमेटा है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या करते हैं ये? गैसियस एक्सचेंज में हम सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्टोमेटा, ये भी किस में भाग लेता है? ये भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भाग लेता है। ये बात क्लियर हो गई? अब स्टोमेटा को अगर हम देखेंगे, इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ये देखो, आपने देखा कि इस प्रकार से ऐसे दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, और इसके अंदर की तरफ आपने देखा कि यहाँ पर एक ऐसा होल बना हुआ है ना? तो ये स्टोमेटल स्टोमेटल ओपनिंग कहेंगे हम इसको। ठीक है, स्टोमेटल ओपनिंग। एंड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय, देखो गार्ड कर रखा है, दो तरफ से दो लोग खड़े हैं, दो गार्ड्स खड़े हैं यहाँ पर, सेल्स। इनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इनको हम? वी कॉल देम, दे आर नोन एज द गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं उसको हम? गार्ड सेल्स। ओके, ये स्टोमेटा का, एक स्टोमेटा को हमने लिया और उसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया स्टोमेटा का एक फंक्शन, क्या बताया मैंने? दे हेल्प्स इन द exchange of gases, exchange of gases। ठीक है, जैसे हम लोग मुंह से, नोज से इनहेल करते हैं, फिर उसके बाद अंदर से हम लोग CO2 को एक्सेल करते हैं, उसी प्रकार से स्टोमेटा भी प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और इसका एक और फंक्शन है, क्या? दे हेल्प्स इन transpiration। Have you heard the term transpiration? ट्रांसपिरेशन सुना है आपने? इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन सब सुना है? प्लांट्स में होने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? इन द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, द एक्सेस वाटर इन द प्लांट बॉडी इज एक्सपेल्ड आउट। यानी कि अगर प्लांट बॉडी में ज्यादा पानी है, जैसे कि हम लोग के शरीर में, हम लोग को जब जब ज्यादा गर्मी लगती है, क्या होता है? हम लोग के शरीर में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। वी हैव स्वेट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, ऑन आवर स्किन, and excess water is expelled out through our sweat glands, है ना? हमारी जो बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स है, उन्हीं से हमारा शरीर का जो एक्सेस वाटर होता है या जो वेस्ट होता है वो बाहर निकलता है ना? तो उसी प्रकार प्लांट्स में भी ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन यानी कि एक्सेस वाटर को बाहर को छोड़ना। सो द स्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एट द सेम टाइम they helps in the transpiration process also. Is that clear to you, children? So this was all about photosynthesis. ओके, हमने क्या क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। एंड वी आर द कंज्यूमर्स। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस द फूड with the help of the process called photosynthesis, light production. Okay, photosynthesis, in which the green plants absorb sun's energy in the presence of carbon dioxide, water, and they prepare glucose as food. And also there's an important pigment which helps in photosynthesis, that is known as, क्या बोला उसको मैंने? क्लोरोफिल कहा, है ना? उसके बाद हमने बात की किसकी? किसके बारे में बात किया हमने? हमने स्टोमेटा के बारे में बात किया। स्टोमेटा
they helps in the exchange of gases and in the process called transpiration. ठीक है, तो आज की क्लास सबको समझ में आ गई? क्लियर है सबको आज का क्लास? तो बेटा आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करेंगे। जो जो बातें मैंने आपको बताई आप जरा इसको घर में जाकर जरा एक बार अच्छे से पढ़कर आइएगा। सो वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास टुडे। वी विल मीट अगेन। ठीक है, टिल देन बाय। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।